Good morning, students. This is the fourth video of Chapter 1, The Living World. In the previous video, we were discussing about nomenclature and the universal rules that are kept in mind before naming various organisms. Nomenclature is a phenomena of naming organisms in such a way that they are universally accepted by those names. As we know, there is a huge diversity of both plants and animals in the world, and it is not necessary that all the organisms are given one single name in every corner of the earth. Different countries or places have different names by which they identify species. For example, ostrich. In some regions, it is called shatarmukh, and in some places, the same animal is called utrupakhi. We call utrupakhi in Bengali. Similarly, tortoise. As we know, it is called kachua in Hindi and kachapa in Bengali and kasav in Maharashtra. Therefore, nomenclature is necessary so that there is a proper name for every organism and no confusion in identifying species. The rules that are kept in mind before naming any organisms are: first, biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं और जब लिखते हैं उनको तब हम इटैलिक्स में लिखते हैं ताकि उसको बाकी टेक्स्ट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है. लैटिन लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम्स इसलिए होते हैं बिकॉज लैटिन लैंग्वेज अब एक डेड लैंग्वेज है एंड इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज नाउ. The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. बायोलॉजिकल नेम्स का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट. So there are two components. Third, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. अब हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुए थे, तो लैटिन लैंग्वेज को इंडिकेट करने के लिए हम उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जब हैंड रिटन होते हैं, और जब हम उनको टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में टाइप करते हैं ताकि उसको बाकी टेक्स्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकें और उनका लैटिन ओरिजिन बता सकें. फोर्थ इज the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. हमारे बायोलॉजिकल नेम में, जिसको हम साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, जीनस एंड स्पीशीज. जीनस जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, और जो स्पीशीज होता है ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट उसका फर्स्ट लेटर हम लोअर केस में लिखते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है मेंजीफेरा इंडिका. मेंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम फॉर मैंगो. सो मेंजीफेरा इज द जीनस. जीनस का एम कैपिटल में लिखा है and indica is the specific epithet whose first letter is written in lower case. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेंजीफेरा इंडिका लिन. मेंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो. लिन डिनोट करता है लिनेस कैरोलिस बिकॉज मेंजीफेरा इंडिका जो नेम है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था लिनेस कैरोलिस ने. सो उनका फर्स्ट इनिशियल्स जो भी होते हैं
उसको हम साइंटिफिक नेम के आगे ऐड कर देते हैं। नाउ सपोज लिनेस कैरोलिस ने जो साइंटिफिक नेम दिया उससे बेटर वर्जन दूसरे साइंटिस्ट ने दिया या फिर उसको करेक्ट करके दूसरे साइंटिस्ट ने दिया, तो हम उनका भी नाम ऐड करेंगे, लेकिन उनका नाम हम लिनेस कैरोलिस के नेम के बाद में ऐड करेंगे। सो इट विल बी, suppose Darwin has given a better name for mango, so it will be Mangifera indica linn dar. It indicates that this species was first discovered by Linnaeus. इससे क्या पता चलेगा कि किस ऑथर ने इसको डिस्कवर किया है। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. अब जैसे कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, अर्थ पे इतनी डाइवर्सिटी है कि हर ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली डिस्क्राइब करना और आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन में हम हर ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं। उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर इनको ईजिली वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज किया जाता है। So classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. So उन characters के basis पर इनको identify भी कर सकते हैं और describe भी कर सकते हैं। For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जैसे ही हम किसी organism का नेम लेते हैं या उनका नेम सुनते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे दिमाग में आते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनको डिस्क्राइब करते हैं और हमको हेल्प करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, dogs and cats, we identify them by their snot, tails, hand, forelimbs, hind limbs, eyes, vision, etc. So these are all characteristic features. These are physical features of these animals. Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know what are we talking about. Alsatians dog की एक कैटेगरी होती है, तो हमें easily पता चल जाता है कि हम इस ग्रुप की या इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। Suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears or body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture of each of our minds will be of wheat plants, not of rice and any other plant. सपोज हम मैमल्स की बात कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे दिमाग में आ जाएंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जैसे कि एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उनके बॉडी हेयर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सारे फीचर्स हमारे दिमाग में आ जाएंगे। अगर प्लांट्स की भी हम बात करें, सपोज हम नीम की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में नीम का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर हम वीट प्लांट की बात करें तो वीट का स्ट्रक्चर आएगा, राइस का नहीं आएगा। दैट इज बिकॉज दोज organisms are described by their characteristic features and are placed into categories. The scientific term for categories is taxa. Categories जिसको हम divide करते हैं, scientific language में उसको taxa बोलते हैं. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat also form a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. अब कैटेगरीज जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक ही तरीके की नहीं है, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सारे एनिमल्स को हम एक कैटेगरी में मानते हैं और स्पेसिफिकली डॉग्स को भी हम एक कैटेगरी मानते हैं। इसी तरह सारे प्लांट्स को हम एक कैटेगरी मानते हैं, लेकिन एक प्लांट का टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम नीम की अगर बात करें तो नीम का जो प्लांट्स हैं उनको भी हम एक कैटेगरी में ही रखते हैं। सो ये टेक्सा अलग अलग हो सकते हैं, बट दे आर ऑल कैटेगरीज।
but you know that a dog is a mammal and a mammal are animals. तो कैटेगरी ऐसे वेरी कर सकते हैं. एनिमल सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई इस केस में, मैमल उससे छोटी, एंड देन डॉग सबसे छोटी कैटेगरी हो गई इस केस में. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट टेक्सा में डिवाइड कर सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी. एनिमल्स या प्लांट्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करने की प्रोसेस को टेक्सोनॉमी बोलते हैं, और वो कैटेगरीज जो होती है उसको टेक्सा बोलते हैं. External and internal structures, along with the structure of cell, developmental process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. इन कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए उन एनिमल्स या प्लांट्स का स्ट्रक्चर माइंड में रखा जाता है, उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितने जर्म लेयर से हो रहा है, उसका इकोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन कैसा है, मतलब उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ है, किस तरह से वो इन्वायरमेंट पे अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इन सारे बेसिस को ध्यान में रखते हैं और फिर ही उनको मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में कैटेगरीज यानी कि टेक्सॉन में डिवाइड करते हैं. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basis of taxonomy. तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स ध्यान में रखते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, देन उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये कौन सा एनिमल या कौन सा प्लांट हो सकता है. आइडेंटिफाई करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन होता है. क्लासिफिकेशन में हम एक जनरल वर्ड दे देते हैं उनको बेसिक कैटेगरी के लिए. हम पूरी उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं लिखते हैं, हम एक सिंगुलर वर्ड से उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्क्राइब करते हैं, एंड देन नॉमेनक्लेचर, देन फाइनली वी नेम द ऑर्गेनिज्म. इस प्रोसेस को टेक्सोनॉमी बोलते हैं. Taxonomy is not something new. Human beings have also been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. टेक्सोनॉमी एक न्यूली कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को बहुत इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन सा तरीके का ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मिलेगा. ओके, बिकॉज ह्यूमन बींग्स एनिमल का बहुत यूज़ करते थे पहले फॉर क्लोथिंग, जैसे कि स्किन से, कैमल की स्किन से, शीप्स की स्किन से अपने क्लोथ्स बनाते थे, एंड देन शेल्टर का भी यूज़ करते थे, एंड स्पेशली फूड. तो इन सब के लिए ह्यूमंस को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी कि विच एनिमल इज फाउंड वेयर. सो टेक्सोनॉमी इज अ old concept, is a ancient concept. Hence, the earliest classification were based on the uses of various animals. तो कौन सा एनिमल कितना यूज होता है उसके बेसिस पर पहले टेक्सोनॉमी होती थी, लेकिन अब टेक्सोनॉमी फिजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे होती है. ऑल्सो द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of animals and their diversities, but also their relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The source of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification.
Systematics takes into account evolutionary relationships between organism. ह्यूमन बीइंग बहुत पहले से ही इंटरेस्टेड है ये जानने में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, मीन्स कौन से दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है या फिर एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है या किस तरह से इवॉल्व हुए हैं. सो उनका एक सिस्टमैटिक बनाया गया, मतलब उनको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में प्लेस किया गया. ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन किया. ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड किया. तो सिस्टमैटिक्स में हम ये करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिन भी ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम सिमिलर कैटेगरीज में प्लेस करते हैं या फिर नियर कैटेगरीज में प्लेस करते हैं. उसको प्लेस करने प्रोसेस को सिस्टमैटिक बोलते हैं. सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया था. इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स हियर इंक्लूड all three, plants, animals and microorganisms. लिनेस कैरोलिस ने एक बुक लिखी थी, उसने अपनी बुक का नाम रखा था सिस्टमा नेचुरे. सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. बिकॉज सबसे पहले हम एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं या ऑर्गेनिज्म फॉर दैट मैटर, आइडेंटिफिकेशन होता है उसका, देन उसकी नेमिंग होती है, नॉमेनक्लेचर होता है, एंड देन फाइनली क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने लिखे. Systematics takes into account evolutionary relationships between organism. कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके सिमिलर है, इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो कितने टाइम में हुई है या कितना ज़्यादा हुई है, इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखा जाता है सिस्टमैटिक की प्रोसेस से पहले. Okay, so now we are done with identification, classification, taxonomy, taxon and systematics. In the next video, we will take these taxonomic categories in detail.